Yes, analysis of financial statement. We have done few case studies. Few case studies are pending. Come to case study 2, a very beautiful case study. Pluto purchased a plant. अच्छा, very beautiful case study के साथ start डाल दो. Examination question 10 to 12 marks. बोला था मैंने पहले, फिर ऐसे सेकंड किया. मतलब हाँ, तो ऐसा बोला कि हमने बिठाया था पेपर में, हमको मालूम तो मेरा एग्जामिनेशन क्वेश्चन मतलब मेरा ही था. हाँ मतलब हाँ, परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 6 lakhs on 1st April X1. Life of plant 10 years. On 31st September X3, it temporarily stopped using plant because demand has declined. However, plant is maintained in workable condition and it will be used in future when demand picks up. The accountant of Pluto decide to treat plant as held for until demand pick up and accordingly measure plant at lower of carrying value and fair value less cost to. Also, accountant has stopped charging depreciation for the rest of the period considering plant is held for sale. The fair value less cost to sell on 30th September was 4 lakh and on 31st March was 3.5 lakh respectively. The accountant performed the following working. Purchase price, accumulated depreciation 4 lakh 50, fair value less cost to sell this should be 4 लाख लिखा है, तो this should be as on 30th September होना चाहिए ना. So the value of about 4 lakhs और फिर balance sheet extract on 31st March X4, asset held for sale 3,50,000. Analyze whether the above accounting treatment made by accountant is in compliance with Ind AS. If not, advise the correct treatment along with necessary working. सबसे पहले बोलो कौन सा स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन आता है इसमें? 105, 16, चलो करके बताओ क्या करना है इसका. Now, if you look at the scenario, we find in the question that somewhere, ये क्यों ऐसा हो गया भाई? चल भाई, somewhere in the question we find that the accountant of Pluto Limited is playing with the benefit provided under 105. Why playing? Because 105 बोलता है हेल्ड फॉर सेल 2 कंडीशन में हो सकता है. अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, कंडीशन नंबर 1 अवेलेबल इमीडिएटली इन प्रेजेंट कंडीशन, बराबर अवेलेबल तो है प्रेजेंट कंडीशन में. 2 सेल इज हाईली प्रोबेबल, और सेल इज हाईली प्रोबेबल के लिए 5 कंडीशन है, बराबर है. अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर दे आर वेरी क्लियर कि उन्होंने प्लांट को टेम्पररीली स्टॉप किया है. क्यों? क्योंकि डिमांड डिक्लाइन है, लेकिन प्लांट को वर्केबल कंडीशन में रखा है सो दैट फ्यूचर में
डिमांड पिकअप होगा तो वो उसको यूज कर सके। तो अगर ऐसा सिनेरियो है, मतलब बेचने का तो इंटेंशन ही नहीं है, हम ये बोल सकते हैं हाईली प्रोबेबल है ही नहीं। और अगर है ही नहीं तो उसको हेल्प फॉर सेल कर ही नहीं सकते, और अगर हेल्प फॉर सेल कर ही नहीं सकते तो 105 ट्रिगर ही नहीं होगा। अब अगर 105 ट्रिगर ही नहीं होगा तो देन एसेट को आपको नॉर्मल डेप्रिशिएट करना चाहिए। नॉर्मल डेप्रिशिएट करना चाहिए तो लॉजिकली 30 सितंबर तक उसका कैरिंग वैल्यू 4,50,000, 30 सितंबर, बराबर है। लेकिन ये वही डेट है जिसके आसपास डिमांड गिर गया, ये वही डेट है जिसके आसपास तेरा प्लान को तेरे को बंद करके रखना पड़ा क्योंकि डिमांड अभी नहीं है। दिस इज एन external condition for plant being impaired. Yes or no? डिमांड अगर गिर जाता है, डिमांड नहीं आता है, योर परफॉर्मेंस ऑफ प्लांट इज नॉट एज पर व्हाट यू हैव थॉट फॉर, देन these आर एक्सटर्नल कंडीशन which will lead to you going for impairment. 4,50,000 fair value less cost to sell or value in use, whichever is higher. We are assuming, we are assuming that value in use दिया नहीं है तो it would be lower than fair value. कितना होगा मालूम नहीं, but lower than fair value, and fair value here is, so I will go for impairment loss of 50,000. 4 lakh पे प्लान दिखेगा, yes or no? This is on 30th September. Then I will depreciate it for next 6 months. 4 lakh divide by 7.5 years into 0.5, assuming कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं, बराबर ना। 2.5 साल हो गया और 7.5 साल बाकी है, कितना होता है? 26,667, कितना आएगा? ये उसका कैरिंग वैल्यू आएगा ईयर एंड पे। ईयर एंड पे भी कंडीशन कुछ खास अच्छा नहीं है, तभी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिख रहा है मेरे को 3,50,000। वैल्यू इन यूज दिया नहीं है, बट विल अज्यूम कि जो भी होगा वो इससे लोअर होगा। अगेन 3,50,000 इज योर रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग वैल्यू 373, कंपेयर इट विद रिकवरेबल का इम्पेयरमेंट लॉस, मतलब मैं टोटल इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करेगा वुड बी ऑफ 50 प्लस 23, तो इट वुड बी 333 का इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज करेगा। फ्यूचर में जब रिवर्सल करने का मौका भी आएगा तो व्हाट आई हैव चार्ज इज 73,333। ये इसका लॉजिकल सॉल्यूशन विथ द लिमिटेड डेटा व्हाट वी हैव and the solution provided by ICAI. पहले तो उसने टाइम पास बहुत किया, चलो क्या क्या एप्लीकेबल है वो मार्क करो।
इधर तक का बराबर है, खाली एरर उसका क्या है, पूरे सॉल्यूशन में एरर किधर है, यहाँ, यहाँ एरर है। मुझे 30 सितंबर को कैरिंग वैल्यू 450 था क्या, बराबर ना, कैरिंग वैल्यू तो 450 था ना। यहाँ जो उसने डायरेक्ट 3 साल, यहाँ जो इम्पेयरमेंट वो जो लास्ट में कर रहा था, लास्ट डे पे, जो वो लास्ट डे पे कर रहा है, वो उसको 6 महीने पहले करना चाहिए, क्योंकि इंडिकेटर तो तभी था। फिर डिप्रिसिएशन करके वापिस अगर कंडीशन खराब है तो वापिस इम्पेयरमेंट कर। उसने जो चार्ज किया इम्पेयरमेंट लॉस में 70 किया, वो अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट ये है, दिस बराबर। लेकिन इंस्टीट्यूट ने यही फॉलो किया, सो आई कैन से इससे बेटर आंसर अवेलेबल है, इससे बेटर आंसर। लिखना चाहोगे बाजू में बेटर आंसर या और किधर के तुमको याद रहता, तुम डिसाइड करो, नहीं लिखना ही नहीं है, ऐसे से कर रहा ना। लिखा ऑल ऑफ यू, मरीन कुछ है डाउट। For example, you have the entities are assessed 105 at the end of each reporting period where there is indication. तो year end पे मतलब देखोगे ना क्या 105 है ना, हाँ अपन 36 कर रहे हैं, नहीं सॉरी 36 में क्या year end में इसलिए each reporting period में हाँ। कि indication देते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हाँ हैं तो इसमें जो year end वो जो करना है मेरे को पता, इंटरिम रिपोर्ट्स बनाएगा तो इम्पेयरमेंट नहीं करने का, नहीं करने का, इंडिकेटर रहेगा तो करने का कि नहीं करने का, हाँ या ना।
हाँ या ना, यानी लॉजिकली क्या होना चाहिए? तो मैं 30 सितंबर इंडिकेटर में इंटर नहीं करोगे, मार्च में बताऊंगा तेरे को, बता मेरे को, ऐसे थोड़ा ना चलता है रे। चलो, किया इतना। दूसरा कौन सा केस स्टडी था? सबसे इजी 7th है, पढ़ा क्या? एग्जाम में जो सॉल्यूशन दिया वही करने का, तुम्हारा घर का उसको मैंने लिखवाया और तुम्हारे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। तेरे को क्या लगता है तू कौन सा करना चाहेगा? हाँ, हाँ, तेरे हिसाब से किसमें मार्क मिलेगा? हाँ, क्यों ICI सीखता नहीं है तेरे जैसा? Mercury is engaged in plantation and farming on large scale, diversified across India. On 1st April, company received a government grant for 10 lakhs, subject to condition that it will continue to engage in plantation of, ये क्या है? Eucalyptus, वो क्या? नीलगिरी, नीलगिरी है ना? हाँ, for coming 5 years. Management has reasonable assurance that entity will comply with the condition engaging in plantation of eucalyptus tree for a specified period of 5 years and accordingly recognize proportionate grant of 2 lakh in statement of P&L following the principle laid down under Ind AS 20. Analyze whether the above accounting treatment made by management is in compliance with Ind AS. If not, advise the correct treatment. चलो कौन बताएगा इसमें? तेजास, आउटसाइड सिलेबस बोल दे, आउटसाइड सिलेबस बोल, बोला इंडिया 20 नहीं हुआ है। जिमी बोल रहा है इंडिया 20 नहीं हुआ, आउटसाइड सिलेबस। एएस का लॉजिक लगाएगा तू? नॉनसेंस। इंटरनेशनल, हाँ, हरी हरी, भक्ति भक्ति +1, वो हरी तू भक्ति तो तू +1 हुई ना। देवलाली, हाँ, इन ये किस में है, कौन सा एक्टिविटी है ये? मतलब 41 आया ना? अब इंडेस 41 का फ्लोचार्ट खोल, फ्लोचार्ट खोल इंडेस 41 का, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट का दिया हुआ है, जरा खोल देख, देख सब किया हुआ है, किया सब है। 20 देखिए वाला आपल्याला नहीं, अरे आपल्याला नहीं नहीं, एग्रीकल्चर वाला है, उधर क्लियरली बोला है गवर्नमेंट ग्रांट इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एसेट्स विच आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तुम उसको 41 के हिसाब से ही देगा। यस, ओनली इफ इट इज अ बेरर प्लांट, तो उसके रिलेशन में तुम 20 देखेगा, या इफ दिस बायोलॉजिकल एसेट आर मेजर एट कॉस्ट तो 20 देखेगा, अदरवाइज इट इज 41 ओनली। फ्लोचार्ट देख। प्रॉब्लम ये अपन देखते नहीं, मैंने प्लांटेशन फार्मिंग को अंडरलाइन भी किया। क्या लिखा अभी बोलो फ्लोचार्ट में? नो कंडीशन अटैच, कंडीशन अटैच, ऐसे ही है ना? नेक्स्ट पेज पे है, मतलब सेकेंड पेज। हाँ, नो कंडीशन, नो कंडीशन अटैच इमीडिएटली पीएनएल। कंडीशन अटैच जब कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब पीएनएल। कंडीशन क्या है इधर? 5 साल तक वो ट्री उगाने का, कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा? 5 साल के बाद। तो 10 लाख को पीएनएल में लेना पड़ेगा 5 साल के बाद, बेस्ड ऑन इंडेस 40। हेलो, क्या बोलते हैं? यस सर बोल रहे। ये देखो, कंफ्यूजन देखो, जो तुमको लग रहा था आउटसाइड दी स्कोप है। हेलो, यस और नो? अब इसमें से कितना कितना पार्ट लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है ना?
कर रहे हो ना, मार खा लो। चलो मार्किंग करो, ये स्टार्टिंग से बता रहा हूं मैं। ये किया, मार्किंग देख रहे हो बराबर से। यहाँ देखो क्या बोल रहा हूँ, इंड एस 20 डज नॉट डील विद गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट बाय इंड एस 41, बराबर ना। तो 20 को मैंने पहली बार निकाल दिया, मतलब ये आता ही नहीं है पिक्चर। ये इंड एस 41 क्या बोलता है, वो अपना फ्लो चार्ट, एंड देन फाइनली कंक्लूजन। तब तक गवर्नमेंट ग्रांट आपके लायबिलिटीज में दिखेगा, किसमें दिखेगा, लायब, क्योंकि पैसा मिल गया लेकिन उसको तो पीएनएल में लेके जा, कंडीशन हैज टू बी सैटिस्फाइड। क्लियर विद दिस? यस। अब कितने केस स्टडी पेंडिंग है इसमें? 8 पेंडिंग है। ये इंड एस 115 में हम कर लेंगे सेम क्वेश्चन, तो हो जाएगा। फिर क्या है, 9 और 1 पेंडिंग है, बराबर है। 1, 8 और 9 तीन ही पेंडिंग है। 8 मैंने बोला 115 में कर लेंगे। 1 किधर गया बे, तुम बोला हो रहा है इधर। 109 में करेंगे सिमिलर क्वेश्चन, तो 109 में करेंगे 1, 8, 115 में करेंगे। अब बचता है 9। 9 तुम जब आओगे नेक्स्ट लेक्चर में, इधर गया 9, दिखता क्यों नहीं है? ऐसी चीजें मत बात कर जो मुझे पता है और तुझे लग रहा है तू मुझे न्यूज देगा, है ना। केस स्टडी 9 तुम नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू करके आओगे, हम डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? यस। क्लोज करेंगे यहाँ पे, क्या और कुछ करना है? करना है, क्लोज करना है, क्लोज कर दे। थैंक यू वेरी मच।